खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत नाम में तमाम अजीजों को सलाम। खुदा के कलाम में से आज हम अपनी रहनुमाई के लिए देखेंगे कलाम खुदा में से मुक़द्दस पौलुस रसूल का खत करंथियों की कलीसिया के नाम, पहला करंथियों उसका 15वां बाब और 15वें बाब की खुदा के कलाम में से हम 14वीं, 13वीं और 14वीं दो आयात को लेकर आगे बढ़ेंगे। पाक कलाम में से पहला करंथियों 15वां बाब और 15वें बाब की 13वीं और 14वीं दो आयात। खुदा के कलाम में लिखा है, अगर मुर्दों की क़यामत नहीं तो मसीह भी नहीं जी उठा, और अगर मसीह नहीं जी उठा तो हमारी मुनादी भी बेफायदा है और तुम्हारा ईमान भी बेफायदा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए भाई से बरकत हो। खुदा यीशु मसीह के बाबरकत नाम में मैं चर्च में आए हुए तमाम खानदानों को, बच्चों को, बड़ों को, बेटों को, बेटियों को खुश आमदीद कहता हूं। And the viewers who will watch us live around the world and later on Family TV YouTube, blessings for all and their families as well. Today we are focusing, we will check First Corinthians chapter 15 verse 13 and 14. कलाम खुदा में हम देखते हैं कि मुक़द्दस पौलुस रसूल जो हैं वो करंथियों के लोगों से मुखातिब हैं। जब खुदावंद यीशु मसीह खिदमत कर रहे थे उस वक्त रोम की हुकूमत थी, और जब यीशु मसीह आसमान पर चले गए उस वक्त भी रोमी हुकूमत ही थी। रोम की हुकूमत में एक सूबा एशिया और उसका सदर मुकाम जो है वो करंथस था। ये इसी तरह से है जैसे पंजाब है और पंजाब का बड़ा शहर, बड़ा खास शहर जो है वो लाहौर है। सो रोम की हुकूमत, एशिया का सूबा और करंथस का शहर। करंथस के शहर में बहुत से मजहब के लोग थे और करंथस की कलीसिया मुक़द्दस पौलुस रसूल ने कायम की थी। और जब कलीसिया कायम की गई, जब लोगों को मसीह के बारे में बताया गया, उन्हें यीशु मसीह की तालीम दी गई, उन्हें यीशु मसीह की जिंदगी के बारे में बताया गया कि किस दौर यीशु मसीह मुक़द्दसा मरियम से पैदा हुए, और उन्हें बताया गया यीशु मसीह के मुअज्जिज़ात के बारे में, और साथ ही उन्हें यीशु मसीह की सलीबी मौत, मुर्दों में से जिंदा होने के बारे में बताया गया, और वो इन सब चीजों पर ईमान ले आए। उन्होंने अपनी जिंदगियां इसी तौर, जिस तौर बताया गया उसी तरीके से गुजारना शुरू कर दी। लेकिन अमूमी जिंदगी में हम इस चीज को देखते हैं कि हमारे इर्द गिर्द के हालात जो हैं वो हम पर असर अंदाज होते हैं। जब कलीसिया बन गई, खिदमत का आगाज हो गया, लोग मसीह में पेवस्त हो गए, तो इर्द गिर्द के लोगों ने कलीसिया पर अपना असर डालना शुरू कर दिया।
اور کلیسیا کو یہ تعلیم ساتھ ساتھ دینا شروع کر دی. ایک طرف مقدس پولس رسول تعلیم دے رہے ہیں, دوسری طرف یہ لوگ تعلیم دے رہے ہیں. مقدس پولس رسول تعلیم دیتے ہیں کہ مردوں کی قیامت ہوگی, مردوں کا جو ہے ان کا انصاف کیا جائے گا, نیکی کی قیامت اور بدی کی قیامت ہوگی, اچھے لوگوں کو برے لوگوں سے جدا کیا جائے گا. مقدس پولس رسول نے یہ تعلیم دی. لیکن دوسرے لوگ جو ہیں وہ یہ تعلیم دے رہے تھے, there is no eternity, there is no قیامت, there is no resurrection, کچھ بھی نہیں ہے, زندگی یہی ہے جو ہم گزار رہے ہیں. اور جب مقدس پولس رسول کو اس چیز کے بارے میں علم ہوا تو انہوں نے خط لکھ دیا کہ اگر یسوع مسیح مردوں میں سے زندہ نہیں ہوئے تو پھر میرا منادی کرنا بیکار ہے, تمہارا ایمان لانا بیکار ہے. یسوع مسیح مردوں میں سے زندہ ہوئے, اور کلام خدا میں یہ بھی لکھا ہے کہ فی الحقیقت یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے ہیں. یسوع مسیح کی the most denied, یسوع مسیح کی صلیبی موت کا دنیا میں سب سے زیادہ انکار کیا جاتا ہے, اور دنیا میں سب سے زیادہ ایمان بھی اسی چیز پر رکھا جاتا ہے. ہماری مسیحت مکمل ہی نہیں ہوتی اگر ہم یسوع مسیح کے مردوں میں سے زندہ ہونے کی بات نہ کریں. اور کلام میں سے آج ہمارا ٹاپک بھی یہی ہے, ریزریکشن آف جیسس کرائسٹ, سگنیفیکنس آف ریزریکشن, یسوع مسیح کے مردوں میں سے زندہ ہونے کی اہمیت. اور کلام خدا میں ہم دیکھتے ہیں کہ مقدس پولس رسول کہتے ہیں کہ اگر مسیح مردوں میں سے زندہ نہیں ہوئے تو پھر ہمارا منادی کرنا بے فائدہ ہے. اب انسان کچھ چیزیں ہیں ریلیٹڈ اس پیغام سے. انسان موت میں کیسے گیا, سب سے پہلے ہم اس کو مختصراً دیکھیں گے. خدا کے کلام میں پیدائش کی کتاب ہے, خدا نے باغ عدن لگایا, اس میں آدم کو رکھا, اور خدا نے کہا کہ باغ کے ہر درخت کا پھل تو بے روک ٹوک کھا سکتا ہے, لیکن جو درخت باغ کے بیچ میں ہے اس کا پھل تو نے نہیں کھانا. The prohibited tree and the fruit, ممنوع پھل. اور کلام بیان کرتا کہ منع کیا گیا پھل بھی جو ہے وہ باغ ہی میں تھا, اور بائبل مقدس بیان کرتی کہ آدم نے اس کو کھا لیا. جب آدم نے اس پھل کو کھایا تو جسمانی طور پر وہ زندہ ہی رہا, لیکن روحانی طور پر وہ مر گیا, وہ گناہ کا غلام بن گیا, وہ ابدی موت میں چلا گیا. وہ جو یہاں پر زندگی میں تھا وہ یہاں پر ڈیتھ میں آ گیا, اور ضرور تھا کہ کوئی زندگی میں سے موت میں جائے, اسے واپس زندگی میں لے آئے. اس لیے یسوع مسیح کی صلیبی موت بہت ضروری تھی, مرنا بہت ضروری تھا. اگر ہمارا کوئی عزیز کسی ایسی جگہ پر چلا جائے جہاں سے وہ واپس نہ آ سکے تو we have to go, ہمیں وہاں پر جانا پڑے گا تاکہ ہم اسے راستہ سمجھا کر مشکل میں سے نکال کر واپس لے آئیں. اور ضرور تھا کہ آدم کے لیے بھی کوئی موت میں جائے اور موت سے دوبارہ اسے زندگی میں لے کر آئے, اور یہ کام کرنے کے لیے دا موسٹ سوٹیبل وہ یسوع مسیح تھے, اور یسوع مسیح نے اس کام کو احسن طریقے سے کیا. سو آج خدا کے کلام میں سے ہم اس چیز کو دیکھ رہے ہیں, سگنیفیکنس آف ریزریکشن, مردوں میں سے زندہ ہونے کی, یسوع مسیح کے مردوں میں سے زندہ ہونے کی اہمیت کیا ہے. اور کلام میں سے عزیزو ہم نے دیکھا کہ آدم موت میں چلا گیا تھا, اور آدم کا موت میں جانے کا مطلب یہ ہے کہ
पूरी बनिनो इंसान मौत में चली गई थी। चाहे कोई कितना भी नेक होता, चाहे कोई कितने भी अच्छाई के काम करता, चाहे कोई कितने भी भलाई के काम करता, लेकिन इब्लीस उसे ताना देता, इब्लीस उसे जताता, यू हैव सिन इनसाइड ऑफ यू, तेरे अंदर तो गुनाह मौजूद है। और उस गुनाह की वजह से इंसान इब्लीस की मौत की गुलामी में चला गया। और यीशु मसीह उस गुलामी से निजात देने के लिए मौत के जरिए गए और जिंदगी में तब्दील किया। अब जरा थोड़ा सा हम देखेंगे कि रिजरेक्शन, उर्दू में इसके लिए क़यामत का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है और बीच में हम इसके बारे में भी बात कर लेंगे। व्हाट इज मीनिंग ऑफ रिजरेक्शन, इंग्लिश में और साथ में उर्दू में भी इसका तर्जुमा करता चला जाऊंगा। रिजरेक्शन मीन इज, मुर्दों में से जिंदा होने का मतलब यह है रीअपेयरेंस, दोबारा से सामने आ जाना। यीशु मसीह को कब्र में रख दिया गया, लेकिन यीशु मसीह दोबारा से सामने आ गए। रीबर्थ, बर्थ का मतलब ये होता है दोबारा आना सामने जिंदगी में, और रीबर्थ की दोबारा से पैदाइश में आ जाना। केम टू एग्जिस्टेंस, अपने जाहिरी हालत में आ जाना। रेस्टोरेशन, बहाली हो जाना, बहाल हो जाना रिजरेक्शन का मतलब है। और इस तरह के रिवाइवल, ये भी बहाली का लफ्ज है। आज हम फोकस कर रहे हैं यीशु मसीह के मुर्दों में से जिंदा होने पर। और खुदा का कलाम हमें बताता है कि जब यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हुए हैं तो उसकी अहमियत क्या है। अगर यीशु मसीह सलीब पर जान ना देते, अगर यीशु मसीह सलीबी मौत को बर्दाश्त ना करते, अगर यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा ना होते, तो बनिनो इंसान अंधेरे में, मौत में, हलाकत में अपनी जिंदगी गुजारती, जमीनी जिंदगी भी, और जमीन के बाद जो जिंदगी है वो भी हलाकत में, तबाही में, बर्बादी में, और ऐसी आग का ईंधन होती जो कभी भी खत्म नहीं होने का। खुदा के कलाम में से पहली जो अहमियत है, द फर्स्ट सिग्निफिकेंस, पहली अहमियत क्या है यीशु मसीह के मुर्दों में से जिंदा होने की, उसको हम देखेंगे। और इसके लिए हम जाएंगे मुकद्दस मत्ती की इंजील, द गॉस्पेल ऑफ सेंट मैथ्यू, मुकद्दस मत्ती की इंजील, उसका 27वां बाब, और 27वें बाब के खुदा के कलाम में से 50वीं आयत। पहली अहमियत क्या है यीशु मसीह के मुर्दों में से जिंदा होने की। और कलाम में लिखा है, यीशु ने फिर बड़ी आवाज से चिल्लाकर जान दी, और मकदस का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया, और जमीन लर्जी, और चट्टानें तिड़क गईं, और कब्रें खुल गईं, और बहुत से जिस्म उन मुकद्दसों के जो सो गए थे जी उठे, और उसके जी उठने के बाद कब्रों से निकलकर मुकद्दस शहर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। हालेलुया। ये है पहली अहमियत यीशु मसीह के मुर्दों में से जिंदा होने की। और कलाम खुदा में हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब सलीब पर है, डाकू कहता है कि हम गुनाहगार हैं, खुदा अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। यीशु मसीह ने कहा तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में हो। और बाइबल मुकद्दस बयान करती कि यीशु मसीह ने सलीब पर यह कहकर अपनी जान दे दी, ए बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। और जब यीशु मसीह ने जान दी तो यीशु मसीह पाताल में चले गए, नीचे चले गए, और वहां पर जाकर यीशु मसीह ने मुनादी की है। अब यहां पर जरा लफ्ज पर लफ्ज गौर करेंगे। 53 आयत में लिखा है, और उसके जी उठने के बाद कब्रों से निकलकर मुकद्दस शहर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। यीशु मसीह ने जब सलीब पर जान दी, मुर्दे उस वक्त जिंदा हो गए थे, मुर्दे जी उठे थे,
ان میں ہمت نہیں تھی، وہ کر نہیں سکتے تھے کہ قبر سے باہر آئیں، زندہ وہ ہو گئے تھے۔ یہ ایسی ہے، آج ہم جدید طریقہ کار استعمال کرتے ہیں۔ اگر ہم اپنی ہسٹری میں جائیں، ذرا پیچھے جائیں، تو انڈوں کو مرغی کے نیچے رکھا جاتا تھا اور موسٹ پروبیبلی میرے خیال میں 21 دن لگتے تھے انڈوں سے چوزے نکلنے میں۔ جب ہم اپنے بچوں کو اکٹھا کرتے ہیں، and I tell you, this is blessing of God. اگر آپ اپنے بچوں کی شادی نہیں کرتے تو you can't get a blessing of God. آپ خدا کی ایک بڑی خاص برکت کو حاصل نہیں کر سکیں گے، اور وہ برکت یہ ہے کہ تو اپنے بچوں کے بچے دیکھے گا۔ اور جب ہم اپنے بچوں کی شادی کرتے ہیں، they got married، ان کی شادی ہوتی ہے، اور ہم سب لڑکی کے ماں باپ یہ امید لگاتے ہیں کہ ہم کب نانا یا نانی بنیں گے۔ لڑکے کے ماں باپ یہ امید لگاتے ہیں ماں کے پیٹ میں بچہ زندہ ہوتا ہے، but there is a process، وہ ایک پروسیس میں سے گزر رہا ہوتا ہے، اور جب پروسیس پورا ہو جاتا ہے تو بچہ جو ہے وہ ڈیلیور ہوتا، بچہ پیدا ہوتا ہے۔ The same was happening with these، ان مردوں کے ساتھ بھی یہی کچھ ہو رہا تھا۔ یسوع مسیح نے صلیب پر جان دی، وہ زندہ ہو گئے، لیکن وہ قبروں میں رہے، وہ قبروں میں رہے۔ اور جب تیسرے دن دا لیڈر، جس نے موت کو شکست دی، جس نے زندگی کو چھین لیا دوبارہ سے، جب اس نے تیسرے دن قبر میں سے پاؤں کو باہر نکالا تو مردے جو قبروں میں زندہ تھے وہ بھی قبروں سے باہر آ گئے۔ سو پہلی اہمیت یہ ہے یسوع مسیح کے مردوں میں سے زندہ ہونے کی، کہ یسوع مسیح اگر مردوں میں سے زندہ نہ ہوتے تو یقین جانے باقی سارے مردے بھی جو ہیں وہ اپنی گلی سڑی بری حالت میں، بے عزتی کی حالت میں وہ قبروں کے اندر ہی رہ گئے۔ یسوع مسیح کے مردوں میں سے زندہ ہونے کی اہمیت یہ ہے کہ یسوع مسیح خود ہی زندہ نہیں ہوئے بلکہ بہتوں کو لے کر زندہ ہوئے ہیں، اور یسوع مسیح کی وجہ سے مردے زندہ ہوئے۔ اور ان مردوں کو خدا کے کلام میں ہم دیکھتے ہیں، اور اس کے جی اٹھنے کے بعد، آفٹر جیزس ریزریکشن، متی کی انجیل اس کا 27واں باب 53 آیت، بڑی غور کرنے والی آیت ہے۔ اور اس کے جی اٹھنے کے بعد قبروں سے نکل کر مقدس شہر میں گئے، اس سے پہلے نہیں جا سکتے تھے، کیونکہ جب یسوع مسیح پتال میں گئے ان کو زندہ کیا، ان کو زندگی بخشی، ان کے معروسی گناہ کو ختم کیا، ڈکلیئر کیا آئندہ مسیح میں زندگی دینے والا ہوں۔ ہر کلام بیان کرتا کہ جب یسوع مسیح نے کہا تو وہ زندہ ہو گئے، لیکن اب انہیں قبر سے باہر آنے کا راستہ بھی تو دکھانا ہے۔ زندگی تو مل گئی، لیکن قبر سے باہر کیسے آیا جائے گا، اس کے لیے یسوع مسیح کے ساتھ یسوع مسیح کا انہوں نے ویٹ کرنا ہے۔ اور یسوع مسیح نے ان دنوں میں انڈر دا گراؤنڈ جو پتال میں سارا پروسیس تھا وہ مکمل کیا۔ دا اتھارٹی وچ واز ٹیکن بائی ایڈم اینڈ ایو، جو آدم اور حوا سے اختیار لیا گیا تھا، یسوع مسیح نے اس کو واپس لیا اور فاتحانہ انداز میں تیسرے دن موت کو، صلیب کو، ہر ایک چیز کو شکست دے کر قبر سے باہر آئے۔ اور پھر یہ بھی مقدسین جو ہیں وہ جاگ اٹھیں گے، اور ہم بائی فیتھ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے مردے زندہ کیے، یہ وہ لوگ تھے جن کے بارے میں خدا نے کہا تھا کہ مجھے ایک شخص مل گیا ہے جو میرے دل کے موافق ہے۔ ان لوگوں میں سے ایک وہ شخص تھا جس نے پہلی ہیکل کو بھی بنایا، ان میں سے وہ بھی شخص تھا جسے ایمانداروں کا باپ کہا گیا، لیکن ان کے اندر معروسی گناہ تھا جس کی وجہ سے قبر کو شکست نہیں دے سکے۔ لیکن یسوع مسیح نے موت کو، قبر کو شکست دی، ریزریکٹ ہو کے، زندہ ہو کے خداوند یسوع مسیح نے ان کو بھی قبروں سے باہر نکال دیا۔ The second point، دوسرے پوائنٹ پر ہم آئیں گے، اور اس سے پہلے چلیں دوسرے پوائنٹ پر ہم جائیں۔
इब्लीस ने हर जगह यीशु मसीह को रोकने की कोशिश की है। यीशु मसीह की पैदाइश ना हो, इब्लीस ने रोकने की कोशिश की। हेरोदेस बादशाह, यीशु मसीह ने जब गलील के इलाका में यीशु मसीह ने कलाम की तिलावत की लूका के इंजील में खुदावंद का रूह मुझ पर है, तो कलाम बयान करता कि यीशु मसीह ने कहा कि आज ये सहीफा पूरा हो गया। और लूका की इंजील में जब आप चौथे बाब में जाएंगे तो आप देखेंगे कि यीशु मसीह कहते हैं कि आज कलाम पूरा हो गया, और लोग क्या कर रहे हैं, यीशु मसीह को पहाड़ी से गिराने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पर भी खत्म करने की कोशिश। फिर आगे हम इस चीज को भी कलाम में देखते हैं कि यीशु मसीह इब्लीस जो है हैकर के कुंगरे पे ले जाता है, एट द पिनेकल ऑफ द टेम्पल, कुंगरे पे ले गया और कहता है कि अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि तेरे बारे में तो लिखा है कि खुदा के फरिश्ते तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे। ऐसे ऐसे बहाने, ऐसे ऐसे हीले, ऐसे तरीकेकार कि खुदावंद यीशु मसीह अपने उस मंजिल तक ना पहुंच सके। बट जीसस डिड, यीशु मसीह ने किया। हर एक चीज को यीशु मसीह ने बर्दाश्त किया, हर तरह के हालात को खुदावंद यीशु मसीह ने फेस किया। और यीशु मसीह यरूशलेम में आए क्योंकि यीशु मसीह को पता था कि यहाँ पर मुझे सलीब पर चढ़ा दिया जाएगा, यहाँ पर मैं जान दूंगा। लेकिन यीशु मसीह को पता था कि मुकद्दसीन की कब्रें यहाँ पर हैं, एंड आई हैव टू गो, मुझे भी कब्र में जाना है, क्योंकि कब्र के रास्ते को कैसे खोलना है मैं बता सकूं। और यीशु मसीह ने कब्र को खोल दिया। The first grave which was defeated, पहली कब्र जिसे शिकस्त हुई वो यीशु मसीह की है। खुदा के कलाम में आगे बढ़ते हैं। पहली बात अहमियत यह है यीशु मसीह के मुर्दों में से जिंदा होने की, कि अगर यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा ना होते तो मुकद्दसीन भी जिंदा ना होते। दूसरी बात, मुकद्दसीन की आसमान तक रसाई। अब जिंदा तो हो गए, जिंदा तो हो गए, लेकिन अब जाना कहां पे है? हमारा हतमी ठिकाना कौन सा है? हमारी मंजिल कौन सी है? हमें जिंदगी किस तौर से गुजारनी है, आगे वो भी देखना है। इसके लिए हम देखेंगे मुकद्दस पौलुस रसूल का खत है इफिसियों के नाम, द पॉल लेटर टू इफिसियन, ठीक है, ओके, इफिसियों के नाम मुकद्दस पौलुस रसूल का खत है, उसका चौथा बाब। और चौथे बाब के खुदा के कलाम में से हम देखते हैं 8वीं, चले 7वीं आयत से दूसरी अहमियत क्या है। पहली अहमियत हमने देखी कि मुकद्दसीन का मुर्दों में से जिंदा होना, यीशु मसीह की रेजरेक्शन की बदौलत मुकद्दसीन जिंदा हुए। दूसरी अहमियत यह है, और हम में से हर एक पर मसीह की बख्शिश अंदाजा के मुवाफिक फजल हुआ है। इसी वास्ते वो फरमाता है कि जब वो आलमे बाला पर चढ़ा, जब यीशु मसीह 40 दिन के बाद आसमान पर गए, तो कलाम बयान करता है तो कैदियों को साथ ले गया और आदमियों को इनाम दिया। यीशु मसीह ने मुर्दों को जिंदा किया। मुकद्दसीन के जिस्म यरूशलेम शहर में देखे गए, लेकिन यीशु मसीह जब आसमान पर गए तो वो मुकद्दसीन यरूशलेम शहर में, दुनिया ही में नहीं रहे, जमीन पर ही नहीं रहे, बल्कि यीशु मसीह उनको अपने साथ आसमान पर ले गए। ये वैल्यू है यीशु मसीह के मुर्दों में से जिंदा होने की, ये वैल्यू है। और यीशु मसीह के मुर्दों में से जिंदा होने की वजह ही से हम भी आसमान पर जाएंगे, हम भी आसमानी मुकामों पर जाएंगे। कलाम बयान करता कि यीशु मसीह द सेकंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट, आमदस्तानी में यीशु मसीह बादलों पर आएंगे। और कलाम बयान करता कि दोबारा से जो कुछ हुआ था यीशु मसीह की वजह से, वो दोबारा से होगा, और दोबारा से मुकद्दसीन के जिस्म जागेंगे, और जो हम जिंदा होंगे हम सब हवा में उड़कर खुदावंद यीशु मसीह का इस्तकबाल करेंगे।
दूसरी अहमियत ये है खुदा यीशु मसीह के मुर्दों में से जिंदा होने की कि मुकद्दसीन के जिस्म जो हैं वो जमीन पर ही नहीं रहे, बल्कि आसमान पर खुदा यीशु मसीह उन्हें अपने साथ ले गए। और यही मैं चीज बता रहा था कि यीशु मसीह की सलीबी मौत और यीशु मसीह के मुर्दों में से जिंदा होने का बहुत ज्यादा इनकार किया जाता है, क्योंकि ये प्लान तो किसी और का है। गॉड प्लान इज दिस, खुदा का तो मंसूबा यह है कि यीशु मसीह सलीब पर जान दे, यीशु मसीह जाए मौत में, जाए पाताल में, और वहां से आदम को जो मौत में चला गया था दोबारा से पकड़े एंड ब्रिंग बैक, उसे जिंदगी में लेकर आए। खुदा का मंसूबा यह था और इब्लीस का मंसूबा यह था कि मौत में जाए और मौत ही में रहे। यीशु मसीह का यह मंसूबा, खुदा का यह मंसूबा नहीं था। अब जरा हम आएंगे तीसरी अहमियत क्या है। पहली अहमियत हमने देखी कि अगर यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा ना होते तो फिर मुकद्दसीन के जिस्म भी जिंदा ना होते। दूसरी अहमियत, उन मुकद्दसीन को खुदा यीशु मसीह आसमान पर ले गए। अब तीसरी अहमियत देखते हैं खुदा के कलाम में से। पहला तस्सलुनीकियों, मुकद्दस पौलुस रसूल का खत है तस्सलुनीकियों के नाम, उसका पहला तस्सलुनीकियों उसका चौथा बाब, पहला तस्सलुनीकियों चौथा बाब, और चौथे बाब की खुदा के कलाम में से हम जरा चले, हम आते 13वीं आयत से। बड़ा ये जबरदस्त रेफरेंस है और ये बहुत बड़ी खुशखबरी भी है। हम क्रिसमस को बड़े जॉयफुल तरीके से मनाते हैं, बड़ी खुशी से मनाते हैं, वेरी गुड। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर ये नहीं है, अगर ये आयात नहीं है तो हमारी खुशी मुकम्मल नहीं है। खुदा के कलाम में लिखा है चौथे बाब में 13वीं आयत में, पहला तस्सलुनीकियों, ए भाइयों, हम नहीं चाहते कि जो सोते हैं उनकी बाबत तुम नावाकिफ रहो, कि औरों के मांदे जो ना उम्मीद हैं गम ना करो। पहली बात, हमें गम नहीं करना। इसके बाद है, क्योंकि जब हमें यह यकीन है कि यीशु मर गया और जी उठा, तो उसी तरह खुदा उनको भी जो सो गए हैं यीशु के वसीला से उसी के साथ ले आएगा। चुनाचा हम तुमसे खुदावंद के कलाम के मुताबिक कहते हैं कि हम जो जिंदा हैं और खुदावंद के आने तक बाकी रहेंगे, सोए हुओं से हरगिज आगे ना बढ़ेंगे, क्योंकि खुदावंद खुद आसमान से ललकार और मुकर्रब फरिश्ता की आवाज और खुदा के नरसिंगा के साथ उतर आएगा, और पहले तो वो जो मसीह में मुए जी उठेंगे, और फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे, ताकि हवा में खुदावंद का इस्तकबाल करें और इस तरह हमेशा खुदावंद के साथ रहे। बस तुम इन बातों से एक दूसरे को तसल्ली दिया करो। आमतौर पर हम इन आयात को फ्यूनरल्स पर, जनाजों पर इसको पढ़ते हैं, जबकि ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। एक उम्मीद है मेरे लिए, आपके लिए। हम इंतकाल कर जाएंगे, हम मसीह में सो जाएंगे, हमें खत्म कर दिया जाएगा, हम पर इल्जाम तराशियां होंगी और बहुत से ऐसे हालात हमें फेस करना पड़ेंगे। बट वी हैव अ ब्रिलियंट फ्यूचर अहेड ऑफ अस। हमारे आगे तो बड़ा शानदार मुस्तकबिल मौजूद है, और मुस्तकबिल ये है कि हम मुर्दों में से जिंदा होंगे। हमारे लिए एक उम्मीद है,
यीशु मसीह के मुर्दों में से जिंदा होने की तीसरी अहमियत यह है, द थर्ड सिग्निफिकेंस, तीसरी अहमियत यह है कि हम उम्मीद के बगैर नहीं है। जब हमें उम्मीद होती है तो फिर हमारी जिंदगी बड़ी आसान होती है। हम कठिनाइयों में से गुजर रहे होते हैं, हम मुश्किलात में से गुजर रहे होते हैं, हम क्राइसिस में से गुजर रहे होते हैं, लेकिन उम्मीद ये होती है कि ये हमारा काम हो जाएगा और हम आसानी से जिंदगी गुजारेंगे। आज दुनिया में और दुनिया में, पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा इशू है इकोनॉमिक, पैसे का बड़ा मसला है। जिसके पास 1000 है उसे 2000 चाहिए, जिसके पास 10,000 है उसे 20 चाहिए। सब चाहते हैं, क्या ख्याल है? ऐसा ही है। जिसके पास अरब है वो अरब पे भी बैठना नहीं चाहता, चाहता 2 हो, हर भी चाहते ज्यादा हो, ज्यादा हो, ज्यादा हो, ज्यादा। और जब हम लोअर लाइफ में आते हैं, पीछे बिल्कुल नीचे की जिंदगी में आते हैं, तो हम अगर देखें तो बाजू का हम क्राइसिस में से होते हैं, लेकिन हमें उम्मीद होती है कि चलें जी, ये महीना हमारा ऐसा है, अगले महीने हमारी कमेटी निकल आएगी तो हमारी जिंदगी क्या होगी? आसान हो जाएगी। हम हर एक चीज को मैनेज कर लेंगे। हम एक उम्मीद में होते हैं। हमारा बच्चा है, स्कूल जा रहा है, कोई बात नहीं, इसने मैट्रिक कर लिया है, इसने एफए कर लिया है, इसने ग्रेजुएशन कर ली है, बट वी हैव अ होप। हमारे अंदर एक उम्मीद होती है कि बच्चा पढ़ जाएगा, लिख जाएगा, अच्छी नौकरी ले लेगा और हमारी जिंदगी आसान हो जाएगी। स्टिल उम्मीद, और वो उम्मीद जो 4 साल में, 5 साल में पूरी होगी, आने वाले 10 साल में पूरी होगी, उस उम्मीद के जरिए हम खुशी खुशी अपनी जिंदगी को गुजारते हैं। और यहां पर भी हमारे साथ यही है, वी हैव अ लिविंग होप। हमारे पास एक जिंदा उम्मीद है, और वो जिंदा उम्मीद खुदावंद यीशु मसीह है कि को हम इंतकाल कर जाएंगे, हम रहलत कर जाएंगे, हम मसीह में सो जाएंगे, लेकिन हमारा ईमान है कि हमारा जिस्म जो है चाहे खाक बन चुका हो, जब यीशु मसीह आवाज लगाएंगे तो खाक जुड़ना शुरू हो जाएगी, हड्डियों में जान आ जाएगी और हम दोबारा से जिंदा हो जाएंगे। हमारी उम्मीद है यीशु मसीह। यीशु मसीह का मुर्दों में से जिंदा होना हमारी उम्मीद है। ये तीसरी अहमियत है। और ऐसी बहुत सी वैल्यूज को, ऐसे बहुत से खास पॉइंट्स को, कलाम में से ऐसी बातों को हम सीख सकते हैं अगर हम गौर करें तो। और यकीन जाने, नेवर डिनाई द रिजरेक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह, मैं जरा चलिए थोड़ा सा और बताता हूं, कभी भी इस चीज का इनकार ना करें कि यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाया गया। कभी भी इस चीज का इनकार ना करें कि यीशु मसीह ने सलीब पर जान दी। कभी भी इस चीज का इनकार ना करें कि यीशु मसीह को सलीब पर से कब्र में उतारा गया। और कभी भी इस चीज का भी इनकार ना करें कि यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा नहीं हुए, बल्कि हमेशा यीशु मसीह ने मौत को, इब्लीस को, आखिरी दुश्मन को शिकस्त दी है। ये हमारी जिंदगी का, ये हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी है। हमारे पास एक जिंदा उम्मीद है। हमारे अजीज जाते अकेले अकेले, जाते अकेले अकेले। मेरे दादाजी फौत हो गए, चाचा जी चले गए, अम्मा चली गई, बट वी हैव अ लिविंग होप। हमारे पास एक उम्मीद है। अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर सजा का हुक्म नहीं है। वी हैव अ लिविंग होप। हमारे पास जिंदा उम्मीद है। चले गए, कोई बात नहीं, वक्त आएगा हमारे वालिद की भी बारी आ जाएगी, वक्त आएगा हमारी भी बारी आ जाएगी। मरेंगे, रहलत होगी, सोएंगे वन बाय वन, एक एक करके, एक पिछले
साल, 21 साल, एक अगले साल, 1-2 साल बाद, लेकिन यीशु मसीह के मुर्दों में से जिंदा होने की अहमियत यह है कि जब यीशु मसीह बादलों पर आएंगे तो हम सब इकट्ठे जिंदा हो जाएंगे और हम अपने खानदानों के साथ साथ जिंदगी गुजारेंगे। इसी उम्मीद पर तो यूसुफ ने कहा कि मेरी हड्डियों को यहाँ पे छोड़ न देना, मिस्र में खाने के लिए चले गए ना, खाना लेने के लिए, तो वसीयत कर दी मेरी हड्डियां यहाँ पे ना छोड़ना, जब यहां से जाओगे, और ईमान भी ये था, यू विल मूव, तुम यहां पर रहोगे नहीं। 430 साल की गुलामी देखी उन्होंने कौम इस्राएल ने मिस्र में। ईमान ये था कि मैं मर गया, मुझे दफन कर दिया गया, मेरी हड्डियों को जब वादा की सरजमीन में जाओगे तो अपने साथ ले जाना, मुल्क कनान में ले जाना, क्योंकि खुदा का इकलौता बेटा वहां पर अपनी जान देगा, उसे कब्र में उतारा जाएगा, लेकिन वो जब कब्र को शिकस्त देगा, जिंदा होगा, तो मैं भी उसके साथ जिंदा हो जाऊंगा। सो यीशु मसीह के मुर्दों में से जिंदा होने की इतनी ज्यादा अहमियत है। एंड आई एम वेरी हैप्पी, इस चीज के लिए मैं खुश हूं। अभी तो वैसे क्रिसमस सीजन आने वाला है और मैं आपको लेके जा रहा हूं रेजरेक्शन डे में। इस चीज की खुशी है कि जब हमारा यह त्योहार आता है, ईद क़यामतुल मसीह, तो हम सब सुबह सवेरे जाग जाते हैं गवाही देने के लिए। सो अजीजो, मैंने इन दिनों में देख रहा था तो खुदा के रूह ने मुझे तहरीक दी कि जरूर है कि मेरे बेटे के मुर्दों में से जिंदा होने की मुनादी की जाए। और मैंने क्रिसमस के बारे में बात नहीं की, हालांकि नवंबर का महीना शुरू हुआ तो ये सीजन शुरू हो जाएगा। बेसिक तो दिसंबर है, लेकिन नवंबर ही में जरा तैयारियां शुरू हो जाती हैं। सो यीशु मसीह का मुर्दों में से जिंदा होना हमारे लिए बड़ा अहम है। यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हुए, मुक़द्दसीन जिंदा हुए। यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हुए तो मुक़द्दसीन को आसमान पर, यीशु मसीह जिंदा न होते तो आसमान पर वो ना जा पाते। राह, हक और जिंदगी में है। यीशु मसीह ने कहा राह तो मैंने दिखाना, राह दिखाने वाला जिंदा हुआ तो मुक़द्दसीन को आसमान पर ले गया। और फिर हम जो जमीन पर हैं, वी हैव लिविंग होप। सो 3 पॉइंट से मैंने क्लैरिफाई करने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की है कि यीशु मसीह का मुर्दों में से जिंदा होना कितना अहम है। हम सब अपने सरों को झुकाएं और आज हम वंस अगेन, द चर्च इज इन क्राइसिस, और हमारा आज का जो क्राइसिस है वो ये है कि हम बेहतर तरीके से अपने बच्चों की देखभाल नहीं कर पा रहे। दिस इज वेरी क्लियर, बहुत वाज़ेह है ये। वी कुड नॉट टीच आवर चिल्ड्रन, हम अपने बच्चों की तालीम और तरबियत बेहतर तरीके से नहीं कर पा रहे। वो अफिलिएट हो जाते हैं दूसरों के साथ, वो मुंसलिक हो जाते हैं दूसरों के साथ, वो उनको उन्स हो जाता है दूसरों के साथ, दूसरों की मोहब्बत में वो गिरफ्तार हो जाते हैं और फिर अपनी जिंदगी तबाह बर्बाद कर बैठते हैं। हम दुआ करेंगे। हालेलुया। प्यारे आसमानी बाप, यीशु मसीह के बाबरकत नाम में मैं तेरी हुजूरी में आता हूं। और खुदावंद, इस वक्त जितने अजीज यहां पर मौजूद हैं, उनके लिए, उनके खानदानों के लिए दुआ करता। खुदावंद तुझे सेहत, तंदुरुस्ती अता फरमा, माली बरकत दे, बड़ा फजल अता फरमा। असीम बाप, ये अपने बच्चों को पढ़ाएं, लिखाएं, अपने बच्चों की हिफाजत कर सके, और वो मोहब्बत जो बच्चे दूसरों में तलाश करते हैं अपने माँ बाप में तलाश करें। खुदा तो इनके साथ हो। और मेरे आसमानी बाप, खुदा पाक खुदा, आरज़ू राजा के लिए, बेटी के लिए तेरी हुजूरी में दुआ करते। खुदा तो अपने हाथ को बढ़ा, यीशु मसीह के बाबरकत नाम में खुदा तेरी मर्जी पूरी हो। खुदा इंसाफ तू कर सकता है। खुदा तो अपने चेहरा के नूर को उसके माँ बाप पर, उसके खानदान वालों पर आशिकारा फरमा, रहनुमाई करे मेरे खुदा। चर्च की, कलीसिया की रहनुमाई करे मेरे खुदा, के सारे मामला को किस तौर से हैंडल करना है। तेरी बरकत हम पर, हमारे खानदानों पर छाई रहे। तेरी शुक्रगुजारी करते यीशु मसीह के बाबरकत नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन।